Hello students, welcome to my channel Basic Mathematics. We were discussing about the validity of a statement. गोटे स्टेटमेंट रो वैलिडिटी केते बेले गोटे स्टेटमेंट वैलिड हो से विषय रे हमें डिस्कशन करूथिले हमें जेते प्रकार कंपाउंड स्टेटमेंट सब पढ़ीथिले से कंपाउंड स्टेटमेंट कौन पढ़ीथिले कंजंक्शन डिसजंक्शन कंडीशनल बाय कंडीशनल चारिटा स्टेटमेंट रो वैलिडिटी हमें केम चेक करबा वैलिडिटी चेक करिया माने केते बेले गोटे स्टेटमेंट वैलिड हेबो जेते बेले सेटा ट्रू हिथिबो इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू then we say that it is a valid statement right or mathematically acceptable statement right. So already we have just discussed about the conjunction it is in this form conjunction. If P and Q are any two statements, then P and Q is a conjunction. This is P and Q. It is a conjunction. When it is true, yes, we have already. हमें करिचु केते बेले एटा true हबो जेते बेले both the prime statements P एवं Q दीटा जाक true थे. When both P and Q are true. So हमें यार वैलिडिटी टेस्ट करया पे हेले हमको चेक करया पड़े स्टेप 1 रे मु कहितली स्टेप 1 P is true स्टेप 2 रे देखिबा Q is true ए दुटी जिंस चेक कर देला परे हमें कहि परिबा जे this conjunction is a valid conjunction but the compound statement is a valid statement right जेम ते हमें कहिले मु बोधे एग्जांपल देथिली 24 is a multiple of 3 and 4 right. Suppose let P hela 24 is a multiple of 3 Q hela 24 is a multiple of 4. So the above statement P and Q you see here, so P and Q will be what 24 is a multiple of 3 and 4 right. एटा होची कोन हमर कंपाउंड स्टेटमेंट बा कंजंक्शन जेते बेले दीटा जगह ट्रू हो P टा ट्रू Q टा ट्रू. अच्छा 24 is a multiple of 3 or not? Yes, it is a multiple of 3 because 3 into 8 is equal to 24. 24 is equal to 3 into 8. So it is a multiple of 3. So this is a true statement. Step 2 रे हम देखले Q टा true ना नहीं 24 is a multiple of 4. Yes, 24 is equal to 4 into 6. So it is also a multiple of 4. So both the prime statements are true. P true, Q भी true. ताले conjunction नियम कौन कहूची गोटे conjunction केते बेले true हबो जेते बेले both the prime statements are true. ताले एठी दीटा जाक prime statement true. So this is a true statement. It is a true statement right. सेमती हमें आसीबा बे disjunction. Yes, disjunction केते बेले valid statement हो हैला केते बेले step 1 P is false
if P is false, then Q must be true. Step 2, if Q is false, then P must be right. आमे ता माने आमे एठी देखेबा assume करिबा suppose P is false, P is false, then Q must be true. कारण ये जो डिसजंक्शन जोटा और द्वारा हमें कनेक्ट करछु दीटा स्टेटमेंट को से केते बेले फॉल्स हमार चांस अछि जेते बेले दीटा जाक फॉल्स थिबे, जेते बेले दीटा जाक स्टेटमेंट फॉल्स थिबे सेतिक बेले फॉल्स आ सब बेले ट्रू. तेनु सेटा फॉल्स कि नाही चेक करिया पहले हमें मने कर भाबिबा सपोज p टा फॉल्स हैला, तल जदी q फॉल्स हे गेला p फॉल्स हैला जदी q फॉल्स हे गेला तल कथा सरी गेला. Both are true, both are false means the disjunction will be false. It is not a valid statement. एठी हमें कहबा suppose p is false, then show करबा q must be q is true. जेतेबेले q false, then p must be true. हमें show करबा ये true अछि बोली. देखिबा suppose हमें नबा 25 is a multiple of 4 and 5. 4 or 5. 4 or 5. एठी हमें देखिबा इति दीटा स्टेटमेंट p हले 25 is a multiple of 4, q हले 25 is a multiple of 5. You see, this is false, this statement is false, this is true. 25 is a multiple of 5. So here p or q, जो 25 is a multiple of 3 or 4 or 5. 4 or 5 is true. That is p or q is valid. It is a valid statement. ए पर्यंत हम डिस्कशन करी थिले, राइट. एबे हमें देखिबा कंजक्शन डिसजंक्शन पर आसीबो कंडीशनल स्टेटमेंट. कोन आसीबो? कंडीशनल स्टेटमेंट. तो हमें वर्तमान देखिबा जे केमिति हमें चेक करिबा वैलिडिटी ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट. केते बेले सेटा माने सेटा ट्रू और फॉल्स केमति हमें चेक करिबा, राइट. यस, कंडीशनल स्टेटमेंट, वैलिडिटी ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, वैलिडिटी ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. validity of a conditional statement. Conditional statement टा केमते थिबो? if p then q, if p then q, right. एको हमें केमती प्रूव करिबा टेस्ट करिबा whether it is a valid statement or not, whether it is true or ट्रू हेले वैलिड हेबो, फॉल्स हेले इनवैलिड हेबो. तो टेस्ट करिया पहले इन जनरल फर्स्ट हमें डायरेक्ट मेथड
प्रथम है different methods, so many method. Direct, number one, direct method. Direct method. Direct method रे हमें कौन करूँ? Direct method रे assume that P is true, then we show that Q must be true. Q निश्चित जदि P true हेला बेले Q निश्चित भाव में true हो यही कथाटा होची डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड कहबार उद्देश्य होची जे फॉल्स गोटे कंडीशनल स्टेटमेंट केते बेले होतिला गोटे कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स आसुथिला केते बेले जेते बेले तार एंटीसीडेंट हाइपोथेसिस ट्रू थाई कि कंक्लूजन फॉल्स आसुथिला if P then Q रे एठी एंटीसीडेंट हला P कंस्क्वेंट हला Q ये फॉल्स आसीबार चांस केते बेले जेते बेले ये ट्रू थिबो ये फॉल्स तले आमे जदी एठी प्रमाण कर देले जे P टा जेते बेले ट्रू Q निश्चित भाबरे ट्रू आसुची शो कर देले आमे प्रूव कर देले ताहले इट इज ए वैलिड स्टेटमेंट तणु वैलिडिटी ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करिया पे हेले डिफरेंट मेथड्स अच्छा वी विल डिस्कस फर्स्ट मेथड होची डायरेक्ट मेथड रे हमको हाइपोथेसिस टा ट्रू अछि बोली भाबे वी हैव टू ट्रीट बट वी हैव टू assume that the hypothesis is true let P be true and we shall show that Q is true when P is true Q must be true then we have false our chance nahi so it is a valid statement good example dei pariba ame suppose gote achi P if P then Q direct likh douchi if n is odd then n square is odd n जदि गोटे odd number हुए ताले n square टा निश्चित भाव में गोटे odd number हो if this एटी p हला किए p statement हला n is odd q हला n square is odd तो हमें assume करिया let us assume that n is odd that is P be true P is true एटा हमें assume करिया P is true this implies what n is odd n is odd number हमें कहा कहबा अजुग्म संख्या हमें कहा को the number which is not divisible by 2 not divisible by the remainder is not 0 remainder theorem sorry yes division algorithm पढ़िछे तुमे n जदि odd हला ताहले n को 2 द्वारा भाग कले भागशेष 0 आसीबो नाही अच्छा 2 द्वारा भाग कले भागशेष डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा हम जानिछु गोटे संख्या को 2 द्वारा भाग कले भागशेष केते रहि पारे आइदर 0 और 1 तेन जदि 0 नुहे एटा ऑड नंबर देछि 2 द्वारा विभाज्य हबो नाही तेनु भागशेष केते रहइबो रिमाइंडर भागशेष हला रिमाइंडर केते रहइबो 1 so we can write this implies we can write n is equal to n
plus 1. K is any integer. It's some integer, not any. It's for some integer k. For some integer k. कहीं क्या मैं को for some integer k any integer लिखती हूँ भूल गया ये कथा बड़ा जानवा दरकार कौन ना हमें जितने बड़े जेकोनसी इंटीजर होनी there is a particular integer k. Suppose I will take 7. 7 is equal to 2 into 3 plus 1. It is k टा होची 3 for some integer. अब किसी एपिरन 4 एपिरन 5 एपिरन 7 एपिरन. But when I will take 11, this 2 into 5 plus 1 is a particular integer, right? Huh? तेणु हमें कहूँ for some integer k, it can be written in the form 2k plus 1. Every odd integer can be written like this. अच्छा यदि ये 2k plus 1 है then let us calculate what is n square. N square is equal to 2k plus 1 whole square. This is equal to 4k square plus 4k plus 1. 2 into 2k 4k. This is equal to 4 into k square plus k plus 1. Or that is, this implies n square is equal to 2 into 2k into k plus 1 plus 1. Right? You see, this is a multiple of 2. So it is an even number plus 1. Even number plus 1. But something 2 into, we can write it as 2 into k dash plus 1. K dash जगह में लिखिबा 2k into k plus 1. This is an integer 2 into k dash plus 1. So this implies n square is odd. So जितने बड़ा हमें assume कर देले जे n टा odd अच्छी ताले n square निश्चित भावरे odd हो. ता माने q is true. Q is true. Right? Thus P implies Q. Implies कथा हम कही छी जेते बेले P true Q निश्चित भावरे true. ए कथाटी हमें प्रमाण कर देले. So if P then Q is a valid statement. It is a valid statement. ये गोटे valid statement हैला. कोडा एटा. If n is odd, then n square is also odd. तो ये कथा को हमें डायरेक्ट मेथड रे हमें सॉल्व कले. एटा कहै छै डायरेक्ट मेथड. त माने assume p is true, then we shall show that q must be true. Right? गोटे एग्जांपल देले केमती भाबरे हमें डायरेक्ट मेथड रे प्रमाण करूछु. बस जहा देले assume कले सेही पाखरु प्रूफ पळेला p true बोली assume कले हमें सीधा जाई पहुंचले q is true. एटा को जाय डायरेक्ट मेथड. राइट? जे कोनसी एई गुडा को वेरी इंपोर्टेंट काहे कि हमें जे कोनसी थ्योरम जे कोनसी स्टेटमेंट करोलरी बा जे कोनसी लेमा प्रपोजिशन हमें प्रूफ करू डायरेक्ट मेथड रे हमें ई प्रोसीजर करू. Right? There is another method, second, which is called contrapositive method. Right? Yes. What is contrapositive? हमें previous lecture गुड़ा करे जानी चु जे कौन? Any conditional statement and its contrapositive are equivalent. Equivalent, same. ता माने दीटा जाको either जते बेले true होबे दीटा जाको true होबे नले दीटा जाको false. Sorry. हाँ दीटा जाको false.
that means they are equivalent, they have same truth values, right? তাহলে instead of writing method of contrapositive method, instead of proving P implies Q, we prove that negation of Q implies negation of it. If P then Q ର contrapositive କିଏ? If P then Q contrapositive କିଏ ଆସିବ? If Q then P, sorry, if negation of Q then negation of P. And already we have seen that these two statements are equivalent statements. They are equivalent statements. So instead of writing proving this, ताମାନେ ଆମେ एठी कोन प्रमाण करथले डायरेक्ट मेथड रे जेतेबेले p ट्रू सेतेबेले q ट्रू, किंतु एठी कोन प्रमाण करबा जे जेतेबेले q इज फॉल्स सेतेबेले p मस्ट बी फॉल्स. सेही टेबुल रो ए कथा को आमे जानुछु. q जेतेबेले फॉल्स हो p फॉल्स हो पे बाध्य. काहे कि ना p जदी ट्रू हे जाय ताल कोन हबो? If P then Q टा false है जो false है, it is not a valid statement. हमें चेक करिवा, हमें चेक करिया, हमें निश्चित हबो बोली कहि परियानी, जति न होला ताले it is not a valid statement, right? तो to prove, ताले instead of proving P implies Q, contrapositive method रे हमें कौन करिवा? If negation of Q then negation of P. तामाने if Q is false or negation of Q is true. एक कथा. If negation of Q is true, then negation of P is what? True, right? So let us take an example. Contrapositive method. If n square is odd, then n is odd. Example IG. If n square is odd, then n is odd. Example. कौन होगा में? Let P हला n square is odd. Q हला n is odd. If P then Q कौन आसिला? If n square is odd, then n is odd. तले हमें डायरेक्ट मेथड कौन करथिले? अज्यूम करथिले सपोज n square is odd, mean it is true. Let P be true. प्रमाण करथिले Q is true. हां, किंतु एठी हमें कोन करिवा? एठी नेगेशन ऑफ P टा कोन? n square is not odd. Negation of Q हला n is not odd. तले हमें assume करिया, let us assume that n is not odd. n जदि odd नुहे, हम भितर कोन अछि? दीटा जिंस, गोटा होची जुग्म संख्या, गोटा होची अजुग्म संख्या. जदि n टा odd हला नाही तल कोन हबो? This implies n is even. This implies n not odd means it must be even. And this implies n can be written as 2k for some integer k.
some integer k कौन से को इंटीजर पई n आसबो 2k कहीं और नो इवन दुई द्वारा डिविजिबल हां हम देखिथिले बे अच्छा जदि n 2k हला तले n स्क्वायर केते हबो 2k होल स्क्वायर दिस इज 4k स्क्वायर ता माने 2 into 2k square right it is 2 into something 2 into a whole number so this implies n square is even this implies n square is not even sorry not odd ता माने negation of that is let us assume that n is not odd ता माने n square is not odd negation of p is true you know yes that is कौन हम assume करछे negation of q is true एक कथाटे हम नेछे पहुंचले कोठी negation of p is true right तेनु एक कथा 10 negation of q implies negation of p so if p then q is a valid statement जेतबे एटा ट्रू एटा निश्चित भाबरे ट्रू हो बोले हमें प्रमाण कर देले तेनु दिस इज if p then q is a valid statement this is a valid statement right बुझी होची ना नहीं हमें डायरेक्ट मेथड रे अज्यूम करथले सपोज p is true प्रमाण करथले q is true एटा कोन करा होची if p then q प्रमाण कले हबो किंतु बेले बेले कोन हुए सेटा प्रमाण करबा अपेक्षा हमको ए कंट्रापोजिटिव प्रमाण करिया सहज हे जाय प्रमाण करबा सहज हे जाय सेथि पई हमें कंट्रापोजिटिव मेथडटा यूज करू वेरी सिंपल if p then q हला कोन if n square is odd एटा दिस इज if p then q if n square is odd then n is odd ताले p हला कोन n square is odd q हला कोन n is odd हमें अज्यूम करबा n square is odd then n is odd प्रमाण करबा कोथरे डायरेक्ट मेथड किंतु n square ता odd हला मुटी अखड़े लागुची n square जदी odd हला ताले n odd करबा प्रमाण करबा हम पाई टिके डिफिकल्ट हे जाउची सेति पई हम कोन कहलु यार उल्टाटा प्रमाण करबा हम सहज लागो कोन n जदी odd न हुए माने q जदी फॉल्स हुए बा नेगेशन ऑफ q जदी ट्रू हुए ताले नेगेशन ऑफ p टा ट्रू की बा p टा फॉल्स की ताले देखिबा अज्यूम करले सपोज नेगेशन ऑफ q इज ट्रू नेगेशन ऑफ q इज ट्रू माने कोन q टा फॉल्स ता माने n इज नॉट odd q हला n इज odd नेगेशन ऑफ q कोन हो n इज नॉट odd n इज नॉट odd n is not odd means n must be even m दे हम चलले चलले जाई कि पहुंची गले कोठी ना n जेते बेले not odd सेते बेले n square भी not odd ता माने जेते बेले नेगेशन ऑफ q टा ट्रू होतला सेते बेले नेगेशन ऑफ p ट्रू हे गेला इला माने इम्प्लिकेशन भला बरे कहिची तमे ताको आउथरा भी देखि परिबो जे if p then q होची ओटे कंडीशनल स्टेटमेंट किंतु p implies q टा गोटे स्टेटमेंट नुए ये गोटे मेसेज हमको अबाउट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ p एंड q हमको गोटे मेसेज दोची कोन दोची जेते बे p ट्रू q निश्चित भाबरे ट्रू राइट आ कोन मेसेज दोची जेते बे q फॉल्स सेते बे p निश्चित भाबरे फॉल्स एडी कोन गला q इज फॉल्स p इज फॉल्स बा नेगेशन ऑफ q इज ट्रू देन नेगेशन ऑफ p इज So instead of the conditional statement if p then q,
we have tested the truth values of if negation of q then negation of p जदि negation of q टा true हुए ताले negation of p भी true ही ता माने आमे contrapositive method होची ता माने if p then q is a valid statement आमे डायरेक्ट एटा true बोली प्रमाण न करी कि if negation of q then negation of p टा गोटे true statement बोली आमे प्रमाण कले ये होची तुमरो method of contradiction right next another method is there contrapositive sorry भूल गली एटा होची method of contrapositive next हमें देखिबा method of contradiction third one what is method of contradiction third method to prove the validity to test the validity of a conditional statement method of contradiction yes कौन है जिनसटा अच्छा व्हाट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन हमें डिस्कशन करथिले कॉन्ट्राडिक्शन होची गोटे स्टेटमेंट गोटे कंपाउंड स्टेटमेंट which is always false जोटा सब बेले false आसीबो irrespective of the truth values of its prime components prime statement गुडाकर truth value जहा हेले भी से कंपाउंड स्टेटमेंट टा सब बेले false आसीबो सेटा होची तुमरो गोटे कॉन्ट्राडिक्शन कहबा हमें ताकू केमती यूज करबा टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट केमती टेस्ट करबा ना एटी देखो हमको कोन प्रमाण करिया को हेची हियर we will have to assume that P is true true but Q is false P means that the hypothesis directly that the hypothesis is true and the conclusion is false इटा गोटे वैलिड स्टेटमेंट केते बेला हो जते बेले p ट्रू सेते बेले जदी q ट्रू बोली हमें प्रमाण करी देले ताहले if p then q टा गोटे वैलिड स्टेटमेंट अच्छा तेनु एठी हमें कोन कले मने कर से कोची p ट्रू हला बेले जणे कहला अरे p ट्रू हला बेले q निश्चित भाबरे ट्रू हबरे आउ जणे आर्गुमेंट करूची ना ना p ट्रू हले q फॉल्स जदी हे गला ना हो ठीक अछि तू ने p जदी ट्रू हला बेले q फॉल्स नै तू देख कोन होची हमें सही काम करबा एटा गालुआ मेथड सपोज p इज ट्रू बट q इज फॉल्स सही केस रे हमें आसी की गोटे कॉन्ट्राडिक्शन रे पहुंचीबा कॉन्ट्राडिक्शन इज नॉट ए acceptable statement तेनु से कॉन्ट्राडिक्शन ता काहे की पहुंचला बिकॉज़ ऑफ आवर रॉन्ग assumption जे p टा ट्रू दिला बेले q टा फॉल्स जो अज्यूम करिछि हमें दैट इज फॉल्स ता माने p ट्रू थिला बेले q केबे भी फॉल्स आसीबो नाही बोली प्रमाण कर देले राइट सो देखिबा लेट अस सी यस गोटे एग्जांपल नबा say example
n square is odd implies n is odd. N square is odd implies n is odd. Right? Here let n square be odd, but n and n be even. Right? n square যেতବେଳେ odd ହେଲା মনে করে n টা even ହେଲା. Now n is even implies n is equal to 2k for some integer k. निश्चित भाବରେ, and this implies n square is equal to 4k square, that is equal to 2 into 2k square. This implies n square is even. ଆମେ ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ପାଇଲେ. thus hypothesis କହୁଛି n square is odd. ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଥିଲା ଯେ n square ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହିଛି n square ଯେତେବେଳେ odd n ସେତେବେଳେ even n odd ହବ. ଆମେ କହିଲେ ହଁ n square ଯେତେବେଳେ odd n odd ନାହିଁ କି ଯଦି even ହେଇଗଲା कोनटा ଭାସିଯିବ. ଆମେ କହିଲେ ମନେ କର n ଟା even ହେଲା. n ଯଦି even ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ n square कोन होची रे it is also even. କିନ୍ତୁ ଆମ hypothesis कोन କହିଛି n square is odd. so ये कोन कला ये hypothesis को contradict कला. मने रखो hypothesis is we have to assume that the hypothesis is always true. जहा दिया ही हमको से जिनसटा निश्चित भाବରେ सत्य. कहीं की हमको केजी अटा दिया है 10 केजी अटार रुटी करिया पई कहला. मैं करि परिबानी का हां काई करि होबनी केजी अटारे 10 केजी रुटी करि हो. जन कला हबो जदी हबो एटा फॉल्स. ताले हाइपोथेसिस टा सबले ट्रू ताकू नै की कंक्लूजन ताकू नै की कन्सिक्वेंट. एंटीसीडेंट इज ऑलवेज ट्रू. कन्सिक्वेंट या ऊपर डिपेंड करछि. तेणु एठी आमे जेतबेले आमे कहिले एटा होची हमर हाइपोथेसिस ये केबे फॉल्स हबो नाही ये सब बेले ट्रू बोली आमे ए मेथड ऑफ प्रूफ रे देखेबा. इट इज ट्रू. ये ट्रू हेले ये ट्रू हबा दरकार. आमे कोन कहले मन नै करो एटा फॉल्स. फॉल्स पॉइंट्स लालो कोन हेगला हाइपोथेसिस टा फॉल्स हेगला. राइट? thus it contradicts the hypothesis. right? तमाने जदि p हैला p स्टेटमेंट आमे नै थिले n square is odd. एठी कोन पाइले से p n square is even पाइले. right? it is suppose r ताले p and r दिटा जाक केमते हो contradiction. so this contradicts our hypothesis. contradiction असला केमती contradict करला just opposite truth होले. so it contradicts our hypothesis. hence our assumption that n is even is false. false. So
n must be odd. Thus n square odd is odd implies n is odd. ଯେତେବେଳେ n square odd होची ସେତେବେଳେ n ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ odd ହବ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା କାହିଁକି n ଯଦି odd न हुए ताले एटा कॉन्ट्राडिक्ट करबा हमर हाइपोथेसिस की काहेकि n स्क्वायर टा ऑड n जदी ऑड न हुए ताले n स्क्वायर भी ऑड हो नाही then this is the method of contradiction ए तीनटा प्रोसेस रे आमे कोन करछे गोटे कंडीशनल स्टेटमेंट प्रूव करछे और गोटे मेथड अछि मेथड ऑफ काउंटर एग्जांपल giving counter example. Fourth, giving counter example. ये काउंटर एग्जांपल कौन काउंटर एग्जांपल हला गोटे एटा यूज करा जाए गोटे स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करबा पई बे प्रमाण करबा पई व्यवहार तमर सब कोर्ट रे कहा को लेके जानती साक्षी साक्षी माने होचंती काउंटर एग्जांपल साक्षी माने होचंती कोन ना काउंटर एग्जांपल इडी जहा मने कर अपोजिशन पार्टी से गोटे आर्गुमेंट करके चली थिबो फटकरी एपट पार्टी कौन करिवो गोटे साक्षीटे नहीं कि पहुंचे दबो जे फेस टू फेस कही दबो जे ना एटा सत्य न एटा मिछ केमति मिछ से देखे राइट तो इठी सेमती काउंटर एग्जांपल डिस्प्रूव करियो भाई प्रमाण करिया पई काउंटर एग्जांपल केबे यूज करा जाए नाही तेणु काउंटर एग्जांपल हमरा सब बेले यूज करा जाए नेगेटिव सेंस रे पॉजिटिव सेंस रे केबे काउंटर एग्जांपल निया जाए नाही पॉजिटिव सेंस रे सदाळे प्रमाण करा जाए आर्गुमेंट करा जाए नेगेटिव सेंस रे जणे आर्गुमेंट करूची हजार आर्गुमेंट करूची गोटी छोटिया एग्जांपल ता भीतर नै कि पहुंचे दबो जणे मन कर कहला मोर मोटे मैथमेटिक्स रे 60 तळे केबे नाही तमे कौन करथिबो से को एग्जाम रे 60 तळे रखितिला 50 रखितिला कि 40 रखितिला कि 30 रखितिला सेही एग्जांपल धरिबो तो अच्छा देखिया तू कहलो अमुक बसेर अमुक एग्जांपल रे एग्जामिनेशन रे तू मैथमेटिक्स केते रखितिलु तू रखितिलु 45 बस एटा 60 तळे अछि ताहाले से जो कहूतिला जे मोर सब बेले 60 ऊपर अछि सेठी जे फॉल्स बे प्रमाण हे गला गोटे एग्जांपल माने हमर जो अछि अमृत भितरे टोपाटे विष पड़ी गले कोन हो पॉइजन हे विष हे एग्जैक्टली से भलिया काम करे के काउंटर एग्जांपल राइट जो कुआ जाए 12 मासर तपस्या सुखुआ पड़रे शेष हुए तपस्या करिच लाळ बहिला पेटरू गोटे दिन सुखुआ खाए से गोटे दिन सुखुआ खाइबेले से तपस्यार मूल्य गला बस एग्जैक्टली काउंटर एग्जांपल सही काम करे राइट लेट अस सी गिविंग काउंटर एग्जांपल्स तमर अछि एटोडे स्टेटमेंट every prime number is odd प्राइम नंबर कौन मौलिक संख्या प्रत्येक मौलिक संख्या गोटे गोटे अजुग्म संख्या एटा होची गोटे स्टेटमेंट एवरी एटा गोटे एग्जांपल हम देले एवरी प्राइम नंबर is a yes counter example is always used to disprove the statement this is a statement every prime number is odd प्रत्येक मौलिक संख्या गोटे अजुग्म संख्या राइट
केमती डिस्प्रूव करवा बाणटे थोइथिबा गोटे एग्जांपल थोइथिबा कौन सी है ना here but 2 is a prime number. Suppose this is the statement P, right? It is the statement P, but 2 is a prime number which is not odd, which is not odd. दुई गोटे मौलिक संख्या जे कि अजुग्म नुहे तो कौन हेला ता माने एटी तमे कहबो जे एटा इफ देन फॉर्म रे नाही हम लिखि परिबा काली करथिले ने प्रीवियस क्लास रे जे हमें केमदी गोटे कंडीशनल बुझौथिले ताको कंडीशनल फॉर्म रे नथिले भी रखि परिबा लिखि परिबा if n is prime then n is odd. The p hela kono n is prime, q hela kono n is odd. तेल उपरोक्त एटा कोन हला if p then q, if p then q होची से स्टेटमेंट है तले but 2 is a prime number which is not odd. तमने here बुझिला p टा ट्रू 2 टा गोटे प्राइम नंबर गोटे एग्जांपल देलेटी p टा ट्रू but q is false. Here p is true but q is false. In case of 2 false when n is equal to 2, when n is equal to 2. One example is sufficient to disprove. So thus if p then q is not a valid statement, valid statement, এটা ওটা valid statement নহে. This is not a valid statement, right? This is not a valid statement, right? In this way we can prove the conditional statements. If p then q चारिटा मेथड रे तीनटा मेथड रे हम प्रमाण कले फोर्थ मेथड रे हम डिस्प्रूव कले जेटा सत्य नुहे. काउंटर एग्जांपल सब बेले सत्य नुहे पई प्रमाण करिया पई काउंटर एग्जांपल दिया जाय, राइट? आ गोटे हम स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट पढि जे जोटा कि हम कहूचे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट. कोन बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ताकू केमती प्रमाण करबा. अच्छा एठी हमें प्रमाण करबा validity of biconditional statement. Validity of biconditional statement. Biconditional statement. Right? अच्छा कौन थी वह इट थी वह p if and only if q, p
if and only if q এটা if and only if iff if লেখলে চলিব if and only if লেখলে তেଣୁ ଏଠି step 1 ଦିଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି step 1 first prove that p implies q বা prove that p is true implies q is true. Step 2 रे prove that q implies p ता माने p true, if p true then q true. এটা if q true then p is true, right? This is about the validity of a biconditional statement. Yes, तेणु एदिटा कहीं actually p if and only if q टा होची गोटे conjunction कौन conjunction if p then q is equivalent to and if q then तमाने दीटा जागा स्टेटमेंट जेमति कंजक्शन हम करथले एटा गोटे वैलिड स्टेटमेंट एवं एटा भी गोटे वैलिड स्टेटमेंट दीटा जागा जिंस हमको प्रमाण करियो पड़ो दिस इज वैलिड एंड दिस इज तेणु यार अलगा किछि नाही एटा जेहेतु दीटा कंडीशनल स्टेटमेंट रो कंजक्शन तेणु हमको एठी प्रमाण करियो पड़ो दीटा जागा कंडीशनल स्टेटमेंट if p then q is true and if q then p is also true. This is a valid statement and this is also a valid statement. Okay, let us stop here. In my next lecture we will discuss about the problems of your elements of mathematics, then solve the all the problems of this mathematical reasoning, right? Okay, we'll stop here. You are requested to subscribe the channel at first and encourage your friends to subscribe the channel so that we will be what able to discuss all the problems of this book as well as other books, and we will prepare for entrance also. Okay, thank you.